So let's start with question number 13th. So I'll just clip this question. Okay. So what is 13th question? Again, it is again the same type only. A retailer sold a suit for rupees 8832 after allowing 8% discount on the mark price and further 4% cash discount. If he made 38% profit, find the cost price and the mark price of the suit. So here we have to calculate two things: cost price we have to calculate as well as the mark price. So first I will go for this mark price, then I will calculate cost price. ठीक है. So यहाँ पे let the mark price, अगर नहीं दिया तो I will start with the same thing. Let the mark price be X. Price be X. Okay. So we are allowing trade discount 8%. तो यहाँ पे I will write rate of trade discount. Rate of trade discount. Which is nothing but 8%. So how much I will get trade discount? It is nothing but 8% of that X. So we'll do cancellation. So 4 2s and 4 25s. So this is my discount, which is trade discount. So I will get the invoice price. जैसे trade discount हो जाएगा, you will get invoice price. What will be invoice price? It will be list price minus the trade discount. So list price is my X and trade discount is my 2X upon 25. So it will be 23X. If I'll take LCM, 25X minus 2X, 23X upon 25. Again, 8% is done. Now again, I'm getting 4% cash discount. So here I will calculate the cash discount amount कितना रहेगा. So for cash discount, it is 4%. So 4% of the invoice price. Every time you have to write invoice price. Whenever you are calculating the cash discount, it is the 4 or whatever percent of the invoice price. It is 25. 4 ones are 4, 25s are. Will get cancelled. So it is 23x upon 6 to 5. 25, 25 multiply हो गया. So we got cash discount now. Then the final is the net amount, or it is net price. So net amount, which is the final price, is nothing but invoice price minus cash discount. Invoice price was 23x upon 25 minus cash discount is nothing but 23x upon 625. So as you can see, denominator same करना पड़ेगा. तो first I will multiply with 25 on the first side to make it same. So here I will multiply with 25. So multiply with 25, multiply with 25. Okay. So here we are going to multiply 23 into 25. So it will be 575. Okay. Now we have the same denominator over here. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So it will be 575 minus 23x. It will be 552x upon 625. So finally we got net amount. But question में net amount दिया हुआ है कि net amount of suit कितना है. So if you can see here,
A retailer sold a suit for 8832. This is my net amount. 8832 is my net amount. So here I can write as 8832 is my net amount, which will be equal to 552 x upon 625. So now we are going to calculate the value of x. So 8832 multiplied by 625 अपॉन 552 रेसिप्रोकल हो जाएगा. 625 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 552 नीचे मल्टीप्लाई होगा. क्लियर है? सो नाउ अभी कैंसिलेशन करेंगे. 552 कंप्लीटली डिविजिबल है 8832 से. सो यहाँ पे मैं वर्किंग पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म और छोटा कर लेते, बेटर रहेगा. तो 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, 3 2, 4 8 जा 32. This is 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 and 4 8 जा 32. This is 138. 3 से कैंसिल कर लेते. 3 4 जा 12, 8, 3 instead of 3 I'll do by 6. 6 से बेटर रहेगा और छोटा हो जाएगा. 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18. Here it will be 6 3 जा 18, 4 0, 6 6 जा 36, 4 8 48, 6 8 जा 48. Now 23 and 368, it is completely divisible. 23 ones are 23, and now 6 times 6 3 is 18, 12 plus 1 13. So means it is 16 times. 23 will cancel 368 16 times. So 16 times of 625 is my x. So x is equal to, will multiply, so it will be 10,000. Is this part clear to you? Yes, sir. So finally we got the list price. मतलब ये लिस्ट प्राइस है. व्हाट इज लिस्ट प्राइस? डिस्प्ले प्राइस. मतलब मैंने 10,000 का स्टिकर लगाया था उस सूट पे, जिसको मैंने 2 बार डिस्काउंट करके 8832 में सेल कर दिया. ठीक है, तो हियर आई एम जस्ट राइटिंग वो जो सूट का प्राइस था दैट वाज 10,000 का था. आफ्टर अलाउिंग 2 डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश, आई एम सेलिंग एट द प्राइस ऑफ 8832. दिस इज माय सेलिंग अमाउंट. ठीक है, बट इतने पे सेल करने के बाद स्टिल आई एम मेकिंग 38% प्रॉफिट. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस. तो मार्क प्राइस 10,000 दैट वी कैलकुलेटेड. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो. सेलिंग प्राइस इज गिवन एज हाउ मच? 8832. नाउ दिस इज द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट मेथड. अब वो कनेक्टेड नहीं है, लिस्ट प्राइस का काम खत्म हो गया. नाउ वी डोंट हैव टू यूज दैट फिगर ओवर हियर. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस. I'll take it as x. And percentage profit, how much is the percentage profit? It is 38%. And we want to calculate x using this percentage profit. So in the lower standard, 8th 9th 10th, you must have used this formula, that is percentage profit is equal to selling price minus cost price upon cost price into 100. Selling price minus cost price upon cost price into 100. This is the formula. Now substitute the value. Percentage profit is 38, selling price is 8832, cost price is my x, cost price is again my x into 100. So now we have an equation containing x term. We'll simplify to get the value of x. So cross multiply कर लेते हैं. 38x is equal to 100 का ब्रैकेट ओपन कर देंगे. 8832 माइनस 100x, मतलब मैंने 100 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो नाउ कीप x ऑन वन साइड, which is 883200. तो 100 plus 38, 138x. Okay, so now we have to get x. So x is nothing but 883200 divided by 138.
नॉर्मली 138 भी कंप्लीट, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन है ना कमीशन ब्रोकरेज में सब कंप्लीटली डिविजिबल फिगर ही आएंगे. तो हियर आई विल शो यू द वर्किंग. दिस इज 138 एंड आई एम डिवाइडिंग इट विथ 8832. सो स्टार्टिंग के 3 फिगर ले लेते हैं. 6 टाइम्स जाएगा. 8 2 828. तो 13 minus 8 5 7 minus 2 5 552. 4 टाइम्स लेके जाओ. 32 3 5 5 552 कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है. इसका मतलब 64 आया. तो 8832 64 टाइम्स है एंड 2 मोर जीरोस, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6400. तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट सूट. तो हियर आई कैन राइट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट is equal to 6400 rupees. Mano, any doubts with this question? No, sir, it is clear. Okay, very good. थोड़ा कैलकुलेशन इज है बट ठीक है, हो जाएगा, मैनेजेबल है. देन वी हैव 14th. An agent charges 10% commission plus 2% del credit if he sells goods worth rupees 37,200. Find his total earning. तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, डेल क्रेडर. व्हाट डू मीन बाय डेल क्रेडर? सबसे पहले सपोज यहाँ पे क्या होता है, मैं मुझे कुछ सामान XYZ को सेल करना है. XYZ को सेल करना है. ये मैं ए हूँ, तो मुझे सेल करना है तो मैं किसी एजेंट के पास जाऊंगा. तो दिस इज द एजेंट, दैट इज बी. ही इज द एजेंट. और मैंने बोला कि काम करो, इस ऑब्जेक्ट को सेल करना है, जल्दी सेल करो, 2 महीने के अंदर सेल कर दो, ताकि जो पैसा मिलेगा मैं लेके चला जाऊंगा. ठीक है, तो ये डिसाइडेड हो गया. तो एजेंट बोला ठीक है, अगर कोई कस्टमर आ गया तो मैं आपका सेल करके डेफिनेटली हो जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ मेरा एक टाइप का ट्रांजेक्शन, जिसमें नॉर्मली एजेंट जो रहेगा वो एक टाइप का सेल्स मैन टाइप है. मतलब अगर कोई बंदा आया तो ठीक है, उसको कन्विंस करके सेल कर देगा. लेकिन व्हाट इज डेल क्रेडर? डेल क्रेडर देखो क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने उसको बोला था कि उसने क्या बोला मुझे कि मैं आपका सेल करूंगा, मुझे 10% चार्ज चाहिए. तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन इसको सेल कर दो विद इन 2 months. ठीक है. दूसरे सिनारियो में क्या होता है, ए एंड दिस इज बी. अगेन मुझे XYZ को सेल करना है. बी इज माई एजेंट. बट मैंने बी को बोला कि अगर एजेंट मेरा तुम सेल कर दोगे 2 महीने के अंदर तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. तो बी क्या करेगा, ही विल गारंटीड, वो गारंटी देगा कि मैं आपका ऑब्जेक्ट सेल करके दे दूंगा 2 महीने के अंदर. आई विल गिव यू दी 100% गारंटी. तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है गारंटी, मतलब तुम्हें टेंशन लेना नहीं है. अगर बायर आया खरीदने के लिए, तो बायर अगर आएगा तो जो भी पेमेंट करेगा वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा. दैट इज आई एम टेकिंग गारंटी. ऐसा नहीं कि कुछ डाउन पेमेंट किया और फिर वो भाग जाएगा, नहीं. अगर वो भाग गया तो भी आई विल पे टू यू, आई विल पे टू यू. तो हियर इट विल गिव हिम अश्योरेंस, गारंटी देगा कि ऑब्जेक्ट आपका सेल होगा और जो डिसाइडेड वैल्यू है वो बायर से आपको खरीद के देगा वो. ठीक है, तो यहाँ पे जब वो गारंटी अश्योर्ड करता है, तो वहां पे जो उसका रेट ऑफ कमीशन जो यहाँ पे 10% नॉर्मल एजेंट को दे रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा उसको हैवी देना पड़ता है. मतलब 10% जो सबको दे रहे वो देना है, प्लस एक्स्ट्रा हो सकता है 5% वो एक्स्ट्रा चार्ज करे. बट वो एक्स्ट्रा चार्ज करे, क्यों चार्ज करे? बिकॉज ही इज गिविंग यू गारंटीड, कि गारंटीड विद इन दैट 2 month मैं आपको कोई ना कोई बायर ला के दूंगा, दैट आई एम अश्योर यू. और फुल पेमेंट होगा उसकी भी गारंटी मैं दूंगा. अदरवाइज अगर वो नहीं दिया तो आई विल पे फ्रॉम माय पॉकेट. तो दिस इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर. दिस इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर एजेंट. तो वो क्या करता है, नॉर्मल एजेंट ही रहता है बट गारंटी देता है कि आपका सामान मैं बेच दूंगा. मानस क्लियर है ये चीज, डेल क्रेडर क्या होता है? हाँ सर. तो यहाँ पे ही इज गेटिंग सम मोर अमाउंट, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको. एजेंट ज्यादा लेगा लेकिन आपको अश्योरेंस देगा कि यस डेफिनेटली ही विल सेल दैट ऑब्जेक्ट XYZ. So let's start with the question. So now it will be more clear to you.
I'll just erase this part. Okay. So question number 14. An agent charges 10% commission plus 2% del credit if he sells goods worth rupees 37,200. Find his total earning. तो उसे कितना टोटल अर्निंग मिलेगा सेल्समैन को, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग अमाउंट या टोटल सेल्स. टोटल sales is rupees 37,200. Okay, 10% commission. So here I will write rate of commission, which is 10%. So here I will get the commission. कितना मुझे मिलेगा 10% के हिसाब से. So here I am going to calculate the commission. So it will be 10% of 37,200. 20 will get cancelled. So it will be 3720. 3720. This is commission. But plus उसको extra में मिल रहा है because he is giving guarantee to you. So that is the del credit. Here I will write the rate of del credit. कितना दिया rate of del credit? 2%. Rate of del credit, it is nothing but 2%. Then I will calculate the amount of del credit. मतलब that commission. This is the extra that he is getting. Amount of del credit. The amount of del credit means it will be 2% of that figure जो जितने में सेल हुआ मतलब उसी फिगर में निकालना है. तो again 2 more zeros will get cancelled. 372 into 2, 744. तो 744 इसको और एक्स्ट्रा एडिशन मिल रहा है. तो एजेंट्स टोटल अर्निंग it will be 3720 plus 744. So we'll add these two amount. So it will be 464. So this is what the agent's total earning. Okay. Then we have, if any doubts you have with any question, तुरंत मुझसे पूछ लिया करो. हाँ. हाँ सर. So this is question number 14. Now we have 15th question, the last question of this exercise. A wholesaler allows 25% trade discount and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked at rupees 1600? ओके, तो यहाँ पे अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसमें नेट प्राइस पूछा है एंड दो डिस्काउंट दिया 25% एंड 5%. एंड वी हैव एन आर्टिकल, उसका जो मार्क प्राइस है विच इज 1600. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. So list price, or we can say the mark price of the article. Is rupees 1600. Then I will calculate trade discount, the first discount, which is 25%. So here now I'm calculating directly the amount, trade discount. So trade discount is nothing but 25% of that figure, which is 1600. So 2 zeros will get cancelled, which is 400. मतलब 400 का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है. So that the next part after trade discount you are getting invoice price.
मतलब बिल इतने का बनेगा, इनवॉइस प्राइस इतना रहेगा, विच इज नथिंग बट मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट. तो 1600 minus 400 will get less. It will be 1200. So 1200 is the invoice price. 1200 is the invoice price. Again, I am getting 5% more cash discount. So here I will calculate the cash discount. So cash discount is 5%. So it is 5% of 1200. Again, two more zeros will get cancelled. 12 5 is 60. So this is my what? Cash discount. Okay. So finally we are getting the net price. So मुझे बताओ नेट प्राइस क्या मिलेगा, मानो एक बार. So 1200 minus 60, so 1140. Yes, very good. It will be invoice price minus cash discount, which is 1200 minus 60. It will be 1140. So this is the net price that I'm going to pay for the book, for the article which is marked as 1600. Okay. So this is your first exercise. We are ending over here. So यहाँ पे हम लोग ने कमीशन एंड ब्रोकरेज दो चीजें सीखी. Now the next exercise, it deals with the discount part, the last part. Commission, brokerage and discount का जो last part है, it is that exercise. So before starting with discount, यहाँ पे तुम्हें कुछ term से familiar होना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले I'll show you this. There are two type of problem, problem A and problem B. So I'm going with the problem A. So now we are starting with discount. Now we are starting with discount. Discount में सबसे पहले तुम्हें तीन terms पढ़ने हैं. What is true discount? What is present worth? TD. What is true discount? And then we have SD, which is sum due. Okay. So these three terms comes in type A. Then we have type B. Type B अलग है. अब इसका relation क्या होता है ध्यान से सुनो. सबसे पहले I'll show you with example. थोड़ा सा समझ में आएगा. Here we have a person A. ठीक है. He gives rupees 1000 to person B with an interest rate of 10%, with an interest rate of 10% for 6 months. For 6 months. Okay. So definitely the B will receive 1000 उसको मिल चुका है and he has to return after 6 months. तो अगर 6 month के बाद का कैलकुलेशन करूं मैं, तो सबसे पहले I will calculate interest. तो इंटरेस्ट क्या मिलेगा? इट इज PRT upon 100, which is 1000, rate 10% and time 6 month है. एंड यू ऑल नो कि रेट हमेशा, सॉरी, जो पीरियड हमेशा होता है उसको ईयर्स में कैलकुलेट करना रहता है. तो 6 मंथ आई विल कैलकुलेट इन ईयर. तो इट इज 6/12 which is 1/2 PRT upon 100. तो 2 zeros will get cancel. 2 ones are 2 5s are 5 10s are 50. तो मतलब इंटरेस्ट कितना इनकर्ड हुआ? 50 रुपीज. तो मतलब मुझे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 50 or plus 1000. So it will be 1050. So matlab that person will return the figure 1050 to A. ठीक है. उसने लिया कितना था? 1000. रिटर्न कितना करा? 1050 मतलब 1050. ठीक है. अब यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान सुनो. जो आज वैल्यू, जो मतलब ये आज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्थ. तो मतलब आज जो मैं पेमेंट कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्थ, PW. जो मुझे पेमेंट रिसीव्ड होगा ए को
आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर एन पीरियड जो भी रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड ए सम ड्यू। तो दिस सम इज इन ड्यू, मतलब इतना पेमेंट करना है। तो प्रेजेंट वर्थ इज माय 1000 एंड 1050 इज माय सम ड्यू, द अमाउंट दैट आई एम गेटिंग। तो सम ड्यू हमेशा ज्यादा ही रहेगा प्रेजेंट वर्थ से। क्यों ज्यादा रहेगा? बिकॉज सम ड्यू में क्या था, प्रेजेंट वर्थ तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 1000 का वर्थ 6 महीने बाद विथ इंटरेस्ट 1050 हो जाएगा। इसका मतलब प्लस 50 रुपीज क्या हो गया, इंटरेस्ट ऐड हो गया है। आर यू क्लियर विद दिस? तो दिस इज माई प्रेजेंट वर्थ, दिस इज माई इंटरेस्ट एंड दिस इज माई सम ड्यू, और वी कैन से इट इज एन अमाउंट। अलग सिनारियो में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, सपोज अगर 6 महीने बाद पेमेंट 1050 करना, अब उल्टा में पढ़ रहा हूं। अगर 6 महीने बाद पेमेंट मुझे 1050 करना है, लेकिन अगर मैं आज ही पेमेंट कर दूं उसको, तो मुझे आज कितना पे करना पड़ेगा, 1000 ही पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 6 महीने बाद का अमाउंट है। तो अगर 6 महीने बाद मुझे अगर 1050 पेमेंट करना है, तो राइट नाउ सपोज मुझे एक डिक्लेरेशन आ गया कि आपको 6 महीने बाद इतना पेमेंट करना है, विच इज 1050 विथ इंटरेस्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ एक काम करते हैं, 6 महीने बाद नहीं, मतलब मुझे जून में आया, मतलब सपोज जून चल रहा है अभी, तो मुझे जून में पता चला कि मुझे दिसंबर, उसी ईयर के एंड में दिसंबर में मुझे आफ्टर 6 मंथ आई हैव टू पे 1050। बट मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं आज ही पेमेंट कर देता हूँ। So if I'm paying right now, so definitely that bill that we have to pay is get discounted. मतलब जो इंटरेस्ट था वो 50 रुपए कम कर दूंगा मैं, तो I'll have to pay what 1000 rupees। इसका मतलब 1050 is the value after 6 months, but if you are paying now, the bill is get, the sum of due is get discounted by 50 rupees, and this is called as true discount। मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वही तुम्हारा ट्रू डिस्काउंट होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो पेमेंट तुम्हें 1050 करना था आफ्टर 6 मंथ, इफ यू आर पेइंग टूडे, मतलब आज अगर मैं पेमेंट करूँ, प्रेजेंट वर्थ में पेमेंट करूंगा, तो वो जो ट्रू डिस्काउंट है 50 रुपीज वो लेस करना पड़ेगा। तो मैं अगर लेस कर दूंगा तो आई एम पेइंग राइट नाउ 1000 रुपीज। सो नाउ इज दिस होल सिनारियो इज क्लियर टू यू? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने तुम्हें बताया, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहा है, ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट ही देखा जाए तो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन किया 50 रुपीज का, दैट इज माई ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। इट इज द सेम एज सिंपल इंटरेस्ट वाला ही है ना, बस इंटरेस्ट वर्ड नहीं यूज करना है, ट्रू डिस्काउंट यूज करना है, ठीक है। दूसरा सम ड्यू, सम ड्यू मतलब जो तुम पेमेंट 6 महीने बाद करने वाले हो, तो 6 महीने बाद करोगे तुम्हें प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट दोनों ऐड करके देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली सम ड्यू मतलब जो तुम पेमेंट कर रहे हो, दैट इज 1050 जो तुम पेमेंट यहाँ पे करने वाले हो, दिस इज माई सम ड्यू। तो सम ड्यू में तुम्हारा क्या आएगा, जो 1000 रुपीज है वो भी आएगा, और प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी आएगा। तो सम ड्यू इज द सम ऑफ प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। So this is my second formula. Sum due is equal to present worth plus true discount. ये first formula. Then we have a second formula. Then we have the third formula. What is third formula now, Jansano? Which is the connection of first and second. मतलब SD is equal to PW plus TD. Now here I am going to substitute the value of TD. TD का formula क्या first में? It is PW into N into R upon 100. So now I can take PW common over here. So in bracket we have 1 plus NR upon 100. So this is the third formula containing SD and PW. तो नॉर्मली तुम्हारे पास ये तीन फॉर्मे पढ़ने हैं टाइप ए के लिए, टाइप बी के लिए अलग फॉर्म है, टाइप ए के लिए। सो ये तीनों फॉर्मे एक बार याद कर लो डियर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार फॉर्मे अच्छे से समझ लो, पढ़ लो और याद कर लो।
Okay, shall we start with the sum? Yes, sir. Yeah. Okay, so now we are starting with exercise 1.2. 1.2. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो. What is given and what they are asking to calculate. So here in the first question, what is the present worth of a sum of rupees 10,920 due 6 month hence at 8% per annum simple interest. ठीक है, तो अभी मैं एक एक करके इसको ब्रेक करता हूँ. व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मतलब क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ पूछा है ऑफ सम ऑफ रुपीज. सम ऑफ मींस सम ड्यू, शॉर्टकट में एस डी कितना दिया है रुपीज 10920 ड्यू 6 मंथ, मतलब पीरियड भी लिख के दिया है. n is equal to 6 month, so that to be in years, that is 6 by 12, 1 by 2 at 8%, मतलब तुम्हारे पास रेट कितना दिया है 8%. सो वी हैव दिस फिगर्स. प्रेजेंट वर्थ निकालना है, सम ड्यू दिया हुआ है, एन दिया है और आर दिया है. सो वी आर गोइंग टू यूज द थर्ड फॉर्मूला. तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट नहीं पूछा है तब तक हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. जब भी ट्रू डिस्काउंट पूछा तो ही यूज करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूज नॉर्मली मैक्सिमम टाइम्स थर्ड फॉर्मूला. That is SD is equal to PW in bracket 1 plus NR upon 100. So now let's substitute the value. So here SD is equal to PW in bracket 1 plus NR. Capital R या smaller चलेगा, so that won't be an issue. I'll just put smaller. So just we'll substitute the value. SD is 10920, PW 1 plus N, half R is 8 upon 100. So now just we have the calculation. 2 ones are 2 fours are 10920 PW, it's 4 upon 100. So let's do cancellation. 4 ones are 4, 25s are. So 10920 PW 1 plus 1 upon 25. So 10920 PW 25 plus 1, it will be 26 upon 25. So finally we want to find PW. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10920 मल्टीप्लाई विथ 25 एंड डिवाइड विथ 26. सो कैंसिलेशन करेंगे, आई थिंक कंप्लीटली कैंसिल होना चाहिए. 13 से कैंसिल करते हैं. 13 2s are 26, 13 8s are 104, 5 to 52, 13 4s are 52, 840, 2 4s are 8, 420. So present worth is 420 multiplied by 25. It's 420 multiplied by 25. So 15,000. 50. 15,000. 420 multiplied by 25. 0. 10,500 dear.
हाँ सर, 10,500। यस, तो प्रेजेंट वर्थ 10,500 है। अगर इसको मैं रियल सिनारियो में फिर से फिट करूं जरा, तो मतलब आज वैल्यूज है 10,500। 6 मंथ का पीरियड अगर तुम दे रहे हो किसी को, तो डेफिनेटली तुम्हें अमाउंट जो मिलेगा वो ज्यादा ही मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो कितना अमाउंट मिल रहा था सम ड्यू? 10,920। तो इट इज 10920, मीन्स यू आर गेटिंग 10920। लेकिन अगर मैंने बोला कि 6 महीने बाद अगर ये पीरियड इतना पैसा देना है, आज ही पेमेंट कर देते हैं, तो अगर आज पेमेंट करेंगे तो तुम्हारा वो अमाउंट लेस हो जाएगा बाय ट्रू डिस्काउंट। तो मतलब जो डिफरेंस आएगा, मतलब 10920 में से आई थिंक 420 या जो भी रहेगा वो रिड्यूस कर दूंगा मैं 420। सो आई विल गेट दी प्रेजेंट वर्थ। तो दिस इज माय सम ड्यू एंड दिस इज माय प्रेजेंट वर्थ। तो सम ड्यू में से वो जो इंटरेस्ट है वो लेस हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द प्रेजेंट वर्थ। और जो इंटरेस्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। सेम वे सेम पैटर्न में करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। आई जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस बार क्या पूछा है? व्हाट इज the sum due of rupees 8,000 due 4 month, hence at 12.5% simple interest। मतलब in this question we have to calculate sum due, मतलब present worth दिया हुआ है and we have to calculate sum due पूछा है। So let's start the value। Present worth is given as rupees 8,000 and 4 month, so it will be 4 month। So 4 months will convert in years, which is 4 by 12, which is 1 by 3, and rate 12.5%, and sum due we have to calculate। So as per the question, sum due पूछा और present worth दिया है। Again we are having a relation of SD and PW, that is the third equation। So again we are starting with the third equation, that is SD is equal to PW in bracket 1 plus NR। Okay, substitute करना है। Present worth is 8,000, 1 plus N is 1 by 3, R 12.5। Okay, now let's do the calculation। सबसे पहले कैलकुलेशन में ना ध्यान से देखो, डेसिमल हटाने का ट्राई करो। तो 12.5 को आई कैन राइट 125, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 into 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 5 1 जा 5 8 जा, और 8 3 जा 1, 8 3 जा 24, तो 8,000 1 plus 1 upon 24। 24 plus 1 एलसीएम लेंगे तो 25, तो 8 1 जा 8 3 जा, तो फाइनली वी आर हैविंग 25,000 डिवाइड बाय 3। तो दिस इज माय व्हाट सम ड्यू। तो सम ड्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33। सेम फिगर विल कंटिन्यू। तो दिस इज माय सम ड्यू, मतलब 8,000 फिगर का सम ड्यू आफ्टर 4 मंथ is 8,333 rupees and 33 paise। Okay, are you clear with this? Yes sir। Okay, so then we have the third question, third and fourth। Okay, so
थर्ड क्वेश्चन, ट्रू डिस्काउंट on the sum due 8 month, hence at 12% per annum is rupees 560. Find the sum due and present worth of the bill. फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, मतलब 1 और 2 में तो एक ही पूछा था, यहाँ पे इन्होंने दो चीजें पूछी है। फाइंड द सम ड्यू, दैट इज एसडी निकालना है, एज वेल एज प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल भी निकालना है। ठीक है, सो इन द थर्ड क्वेश्चन, true discount of the bill, true discount is given as 560, due 8 month, मतलब basically n is equal to 8 months, but n must be in years, so 8 divided by 12, 4 2s are 4 3s are 2/3, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज आर 12%. Find the sum due and present worth of the bill. So we are calculating sum due, that is and present worth दोनों बोला है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में टीडी दिया है, ट्रू डिस्काउंट, तो वी कैन डायरेक्टली गेट द प्रेजेंट वर्थ। तो सबसे पहले विल ट्राई टू गेट द प्रेजेंट वर्थ। तो वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, इट इज टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर द होल अपॉन 100. So we are substituting these values. TD, which is true discount, 560. PW, which is present worth, we don't know, so I'll keep just PW. And 2/3 rate 12 upon 100. 3 ones are 3 fours are. Okay. Actually calculation और छोटा हो रहा है, but don't do this for simplicity. तो just 4 2s are 8 में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 100, let it be as it is. तो इफ यू वांट टू गेट PW, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 560 मल्टीप्लाई बाय 100 द होल डिवाइड बाय 8, 8 7s are 56, that means 70. So it will be 7000 is my present worth. So now we are calculating SD. अब SD का थर्ड नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। SD इज इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बिकॉज ट्रू डिस्काउंट दैट इज इंटरेस्ट वी नो, एंड प्रेजेंट वर्थ भी तुम्हारे पास दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे। So present worth is 7000 and true discount was 560. So it will be 7560 is the sum due. So in this question we calculated both the things, sum due as well as present worth. So first I calculated present worth method फॉर्मूले के थ्रू, एंड सम ड्यू के लिए फिर हम लोग पीडब्ल्यू और टीडी दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। काफी छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन में ही है। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। मतलब इस क्वेश्चन में कहीं भी रुपीस करके वर्ड नहीं आया, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द बिल एंड रेट दिया है बस। सो क्वेश्चन में क्या बोला, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम is 3/8 of the sum due. The true discount on a sum is 3/8 of the sum due. ये एक रिलेशन दिया है, एंड रेट दिया है 12%, बस इतना ही दिया है, एंड पूछा है फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, दैट एन वी हैव टू कैलकुलेट। सो देखो यहाँ पे एक एन कैलकुलेट कैसे करेंगे। द रूल इज वी हैव अ रिलेशन बिटवीन टीडी एंड एसडी, बट एक्चुअली मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला दिया है टीडी और एसडी में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, एसडी और पीडब्ल्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला है, एसडी एंड पीडब्ल्यू में। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा चेंजेस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एज वी ऑल नो,
SD is equal to PW plus TD, that we know. I'm substituting TD की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. TD is 3/8 of SD. ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, TD is 3/8 of SD जो कि गिवन था. फॉर्मूला मैंने लिखा SD इज इक्वल टू PW प्लस TD. क्यों लिखा? बिकॉज मुझे TD और SD में रिलेशन नहीं चाहिए. आई वॉन्ट टू गेट द रिलेशन बिटवीन SD एंड PW. अब वो कितना मल्टीप्लाई है तो दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. सो यहाँ पे SD वैसे ही रहने दो, PW भी वैसे रहने दो, एंड TD आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एज 3/8 ऑफ SD. ठीक है, तो TD की वैल्यू ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ कंटिन्यू. SD को एक साइड ले लो, तो SD यहीं रहने दो. इट विल कम ओवर ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज ट्रांसफरिंग ऑन दी अदर साइड, मतलब ये इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ. तो SD माइनस 3/8 ऑफ SD इज माई PW. एलसीएम ले लेते अपॉन 1 करके, तो 8 का हो जाएगा, तो 8 माइनस 3, दैट इज 5/8 ऑफ SD इज माई PW. तो फाइनली मुझे SD की वैल्यू क्या मिलेगी? 5/8 को ट्रांसफर करेंगे तो 8/5. तो नाउ वी गॉट दैट रिलेशन, दैट व्हाट वी वांट, SD और PW में रिलेशन. तो मैंने ये रिलेशन को चेंज कर दिया, SD और TD जो दिया था, नाउ इट इज चेंज टू SD एंड PW. ठीक है. अब इसके बाद ध्यान से सुनो, अभी मुझे बस अभी फॉर्मूला यूज करना, तुम्हारा आंसर. थर्ड फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? थर्ड फॉर्मूला इज SD is equal to PW in bracket 1 plus NR upon 100. So here we are going to substitute the value. SD की value put up कर दो. What is SD? Which is 8/5 of PW. PW वैसे ही रहेगा, 1 plus N नहीं पता, rate 12% था. You can see in the question the rate is given as what? 12% upon 100. Okay, so now PW and PW cancel. So we have an expression containing N only. So बस अभी N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So 8/5, 3 जा 25 जा, that is 3N/25. So 1 को ट्रांसफर कर रहा हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 8/5 minus 1 is 3N/25. So 5 1 जा 5, 5 का एलसीएम लेंगे तो 8 minus 5 which is 3/5, 3N/25. So N is equal to 3/5. 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 and 3 कैंसल, 5 1 जा 5 5 जा, तो N is equal to 5 years. ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट द आंसर इज द पीरियड ऑफ द बिल दे आर आस्किंग. सो द पीरियड ऑफ द बिल is equal to 5 years. ठीक है. So